Hello, my dear champions. My name is Naveen Kumar, and you are watching me. So, in the part 1 or part 2, we have covered all our basic of chapter 11, in which we covered minor sector, major segment, and length of arc. So, what is in this part? So, in this part, we are going to cover our exercise questions. So, are you careful? Are you ready, all of you? Okay, be ready. Now, what we have given in the question number 1. Okay, so find the area of a sector means we have to find the area of a sector, and I told you in the part 1 that sector is made up by the two radius and length of arc. Okay, sector is made up by the two radius and length of arc. So we have to find out the area of the sector. If angle of the sector is 60 degree, angle of the sector is 60 degree, कि sector का जो angle है which is 60 degree, and I told you that whenever the angle is less than 180 degree, then the sector will be minor sector. So it means just we have to find out the area of minor sector. Okay, so the very first thing is that we have to draw a figure in which that we have a circle and radius of the circle is 6 centimeter. So this is the center of the circle and this is the radius. This is the center of circle and this is the radius, and the angle is between the radius is 60 degree on the center of the circle. It is 60 degree. Okay, and the radius of the circle is 6 centimeter. This is the radius and this is the radius 6 centimeter. So we have to find out the area of this minor sector. What is minor sector? देखो ये जो आपके पास पोर्शन दिख रहा है, इस पोर्शन का आपको क्या बताना है? एरिया. आपको लग रहा होगा सर ये तो पिज्जा की जो एक स्लाइस आती है उसकी जैसी है. हाँ, पिज्जा की एक स्लाइस जैसी है विच इज कटेड बाय द सेंटर. जो किसको कहां से कट किया गया? सेंटर से. और ये इसकी रेडियस, ये इसकी रेडियस, एंड दिस इज द लेंथ ऑफ आर्क. सो वी हैव टू फाइंड आउट इट्स एरिया. और एंगल जो है वो 180 से क्या है? छोटा. सो इट इज अ माइनर सेक्टर. सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट वी हैव गिवन इन दिस क्वेश्चन व्हिच वी हैव टू राइट अबव द पेज गिवन दैट. And what we have given? We have given the angle, and the angle is 60 degree. Angle is 60 degree. Next, थोड़ा बड़ा हो जाता है डिग्री ना. Next, radius is 6 centimeter. So what we have to find out? I told you that the angle is less than 180 degree means we have to find out the area of a minor sector. So find out area of minor sector. Area of minor sector. Okay, area of minor sector. So this is the solution that we have to solution. What is solution? As you all know that what will be the area of the minor sector? Pi r square theta upon 360 degree. So you have to write here that area of a sector, area of a sector, area of a minor sector, area of minor sector equals to pi r square theta upon 360 degree. Now we have given in this question that unless stated otherwise use pi 20/7 कि जब तक नहीं बोला जाए ना तब तक आपको क्या लेना है? पाई की वैल्यू 22/7 और कुछ नहीं, केवल हाँ, ठीक है. सो वी हैव टू राइट हियर द वैल्यू ऑफ पाई विच इज 22/7 and what is its radius? Radius is 6 centimeter. So we have to write 6. And how many powers on the radius? There are 2 powers on the radius. So we have to write the radius 2 times. अगर radius पर power 3 हुई, so we have to write it 3 times. लेकिन यहाँ पर radius पर power कितनी है? 2. So we have to write it 2 times to make it more easier, है ना? ताकि आपको square नहीं निकालना पड़े, है ना? Okay. So the angle is that we have given in this question which is 60 degree. और जो आप एंगल लिखते हो उसी के नीचे आपको जो 360 है वो लिखना है. एंगल के नीचे ही एंगल लिखना है. क्यों सर, कोई जरूरी है? नहीं, इट इज नॉट मैंडेटरी, बट इट इज इजी टू कैलकुलेट द वैल्यूज, टू फाइंड आउट द वैल्यूज. ओके, सो वी हैव टू राइट एंगल के नीचे एंगल. ओके, सो 0 से 0 कैंसिल आउट. इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो. 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, और 6 से 6 क्या हो गया? कैंसिल. सो नाउ व्हाट वी हैव? 22 6 जा 132 अपॉन 132/7, and the unit that we have given is centimeter. So we have to write centimeter square. We have to write centimeter square because जो एरिया होता है उसकी यूनिट किस में आती है? स्क्वायर में. जैसे अगर यहाँ पर मीटर होता तो यहाँ पर क्या आ जाता? मीटर स्क्वायर. सो दिस इज द आंसर दैट वी हैव टू फाइंड आउट इन द क्वेश्चन नंबर 1. यही आपका क्या था? एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर जिसकी रेडियस 6 है और एंगल क्या है? 60 डिग्री. सो इन द क्वेश्चन नंबर 2
in the question number 2, books 11 chapter, and okay, in the question number, sorry, it is taking little bit time. 8 page. So this is the question. So so what we have given in the question number 2 and what we have to find out. Before that, you have to read this question very carefully. So in the question number 2, find the area of a quadrant. Before going further, just you have to think about it, that what is quadrant. And I told you in the basic of the chapter 11 that quadrant means if a circle divided 4 equal parts, कि अगर आप किसी सर्कल को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, 4 इक्वल पार्ट्स में, so each part will be known as quadrant. आपने कार्टेशियन प्लेन में भी पढ़ा होगा कि इफ वी हैव अ कार्टेशियन प्लेन, है ना. अब देखो कार्टेशियन प्लेन है, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस, हो गया नहीं, है ना. सो ये जो पार्ट है इसे अपन बोलते हैं क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट थर्ड, क्वाड्रेंट फोर्थ, बिकॉज a plane divided into 4 equal parts. Same for the circle. अगर आप इसके ऊपर सर्कल ड्रॉ कर दोगे, so circle is divided in 4 equal parts. So each part, इसको भी आप quadrant बोलोगे, इसको भी, इसको भी, इसको भी. So how many quadrants we have right now? 4. So this is the quadrant 1, this is the quadrant 2, this is the quadrant 3, this is the quadrant 4. And you know very है ना? You know very well that सर्कल से सेंटर मेक्स अ कंप्लीट एंगल. कि जो सर्कल का सेंटर होता है वहां कितने डिग्री का एंगल बनाता है? कंप्लीट एंगल. कंप्लीट एंगल मींस 360 डिग्री. और 360 डिग्री कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 4 पार्ट्स में. इट मींस ईच पार्ट विल बी 90 डिग्री. कि जो एक पार्ट होगा वो कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री. ओके, लिसन. सो दिस इज द सर्कल दैट वी हैव एंड it is asking about the quadrant. So just before that we have to make a quadrant. Quadrant means a circle divided into 4 equal parts. So okay, so now we have a circle, and how many parts we have right now in this circle? We have 4 parts. Each part is known as quadrant. और एक पार्ट को क्या बोलोगे? quadrant. You can take which you want to take. इसमें 4 quadrant आपके पास, और जो आप लेना चाहते हो वो ले सकते हो. It's completely depend on you. So I am taking this one. मैं इसे consider कर रहा हूँ ना. Okay. So as you all know, this is the center of the circle, and center से यहाँ तक की जो distance होती है, it is known as radius. It is known as radius, and this is the length of arc. This is the length of arc. Say yes or no? So before going further, we have completed that. Find the area of a quadrant means we have to find out the area of this one. And as you all know that how much angle here? It will be 90 degree. Angle कितने डिग्री का होगा? 90 degree. So next, find the area of a quadrant of a circle whose circumference is 22 centimeter. आपको इसका क्या बताना है? एरिया बताना है. And you know very well that angle is less than 180 degrees, so we can call it area of minor sector. Area of a minor sector. Is there a problem? No. So आप चाहो तो इसे minor sector भी बोल सकते हो. And the reason is because the angle is less than 180 degree. So now next we have given circumference is 22 centimeter. So we have to write here before that what we have given. We have given that circumference of the circle is circumference of circle, है ना? Circumference of circle is 2 pi r, which is 22 centimeter. And next what we have given? Nothing, but we understood itself, मतलब कि ourself, that quadrant means angle will be 90 degree. So you have to write here angle, or we can say theta, which is 90 degree. ये सेल्फ अंडरस्टूड था ना, इसमें मेंशन नहीं था दैट क्वाड्रेंट का मीन से क्या होता है? राइट एंगल 90 डिग्री. नेक्स्ट, अब आपको पता है इन द लास्ट क्वेश्चन वी हैव राइट हियर दैट एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री. मींस to find out the area of a minor sector we need angle and radius, but in this question there is no radius, so it means you have to find out the radius. Yes, you have to find out. Okay, but I will help you. ठीक है. So
it means we have to find out the radius. So how can we find out that? So very first thing, what we have to find out in this question, you have to mention clearly to get 100 out of 100. So you have to find out the area of a quadrant. So area of a quadrant, area of a quadrant. So area of a quadrant, you have to find out this one. So what we have given that circumference is 22. और किसकी circumference? We are talking about circle, so we are only saying about the circumference of the circle. And आपको पता है circumference का जो फॉर्मूला होता है which is 2 pi r, तो आप इसे circumference की जगह उसका फॉर्मूला राइट डाउन कर दीजिए. तो circumference of the circle क्या होता है? 2 pi r equals to 22. And you all know that 2 की जगह क्या आ जाएगा? 2. On the place of pi we have to write 22/7, and we don't have the value of radius, so we have to find out. It is clearly mentioned that just we have to put the value of radius, so but we don't have the radius, so we have to find out it. Okay, equals to 22. So now 22 बन जा 22 बन जा 22. So the remaining terms are, देखो ये आपके पास डिवाइड में 2r/7 equals to 1. So do one thing, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए आप, ये इस तरफ और ये इस तरफ. सो 2r बन जा 2r इक्वल्स टू 7 बन जा 7. Here 2 is in the multiply, so whenever we do transposing, अगर ये मल्टीप्लाई में अगर अपन ट्रांसपोजिंग करेंगे तो हो जाएगा डिवाइड में. सो r इक्वल्स टू 7/2 सेंटीमीटर. सो नाउ वी हैव फाइंड आउट रेडियस. आपने क्या फाइंड आउट कर ली? रेडियस फाइंड आउट कर ली. नाउ इट्स योर टर्न टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट. सो अब अपन चलते हैं. अपने को तो रेडियस फाइंड आउट नहीं करनी थी, वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट. तो आपको तो क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करना था. सो आपने रेडियस तो फाइंड आउट कर ली, एक काम आपने कर लिया. अब आप आ जाइए क्या निकालने के लिए? एरिया निकालने के लिए. सो आप देखो एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर, या दूसरा पेन यूज करूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, area of a minor sector equals to, what is the formula? I write here that pi r square theta upon 360 degree. The value that you have considered on the place of pi, which is 22/7 into, and I told you in the last video that r की power क्या है? 2. So you have to write the value of r 2 times. How many times? 2 times. So what is the value of r? Which is 7/2 multiply 7/2 multiply. What is the value of theta? Theta की वैल्यू क्या है? The value of theta is 90 degree. So 90/360. 0 से 0 cancel out. 9 1 जा 9, 9 4 जा 36. Is there a problem? No. 7 से 7 cancel out. 2 1 जा 2, और इसको इससे करोगे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2. So the remaining terms are 11 into 7. So 77/4 2 जा 8. And as you all know that this is the area of a minor sector, or we can say quadrant. So you have to write the value of, unit of area, which is centimeter square, because आपके पास जो था वो 22 सेंटीमीटर था. That's why I write here centimeter square. So this is the area of a quadrant. You can write also that area of a quadrant is area of a quadrant. और किसका quadrant? सर्कल का. Area of a quadrant of a circle is 77/8 centimeter square. This is the required answer that we have to find out in this question. So are you getting my point? Okay. So we are moving for the question number 3rd. Okay, 3rd. Listen. So read क्वेश्चन नंबर 3rd केयरफुली. अब आपको जो है वो क्वेश्चन नंबर 3rd है ना, वो रीड करना अच्छे से. So what we have given in the question number 3rd, we read it carefully. So the very first thing is that the length of the minute hand. Minute hand का मीन्स होता है जो आपके पास वॉच होती है. there are 3 hands. हैंड्स का मतलब होता है सुइयां. तो उसमें 3 टाइप की सुइयां होती हैं. एक तो मिनट वाली, एक अभी मेरे पास होगा, देखो रुक जाओ, कुछ होता है तो दिखाता हूं. अरे है ना, ओके. सो देखो अगर आपको क्लियरली दिख रहा होगा तो इसमें
अच्छा इसमें है नहीं, ठीक है। जो घड़ी होती है उसमें 3 हैंड होते हैं, मिनट हैंड है ना, आवर्स हैंड और सेकंड्स हैंड, तो उसमें 3 सुइयां होती हैं। तो इट इज टॉकिंग अबाउट द मिनट हैंड की जो मिनट वाली सुई के बारे में बात कर रहा है। सो बिफोर दैट वी हैव टू रीड, सॉरी बिफोर दैट वी हैव टू ड्रॉ अ फिगर विच इज रिलेटेड टू किससे, विच इज रिलेटेड टू वॉच, जो किससे रिलेटेड है, वॉच से। सो यहां पर आपके पास जस्ट आई एम ड्रॉइंग डायल पैड ऑफ अ वॉच। सो आपको पता है यहां पर क्या होता है, 12 है, यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 है। दिस इज द डायल पैड ऑफ अ वॉच। ये जो वॉच है उसका डायल पैड है। सो इट इज टॉकिंग अबाउट दी मिनट हैंड। सो आप एक मिनट हैंड बना लेते हैं, ठीक है, ये मिनट हैंड हो गया। सो नेक्स्ट इट इज सेइंग दैट द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। की जो मिनट हैंड है उसकी लेंथ क्या है, 14 सेंटीमीटर। मींस यहां से यहां तक, ये जो मान लेते हैं कंप्लीट टच कर रहा है इसको, ये इसकी जो लेंथ है वो है 14 सेंटीमीटर। ये मिनट हैंड हो गया, ओके, मिनट हैंड हो गया। आफ्टर दैट फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। कि 5 मिनट्स में इसके द्वारा जो एरिया है वो कितना एरिया साफ किया गया, स्वैप्ट किया गया, कवर किया गया। तो आपको पता है यहां है ये स्टार्टिंग में, ठीक है। 5 मिनट्स बाद कहां होगी मिनट हैंड, ये 5 मिनट्स लेटर यहां होगी, होगी कि नहीं होगी। मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट दिस एरिया। आपको ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। तो आपने बोला सर रेडियस तो अपने पास है, ये 14 है, तो सर यहाँ ही ये आएगी, ये भी क्या हो जाएगा 14। बट सर वी डोंट हैव द एंगल। और आपको पता है एरिया निकालने के लिए वी नीड पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, रेडियस एंड थीटा। सो रेडियस तो अपने पास है बट वी डोंट हैव थीटा, एंगल अपने पास नहीं है। सो आपको पैनिक नहीं होना है। यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग। अगर मान लो ये मिनट हैंड यहाँ है, ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, कि मिनट हैंड जो है वो यहाँ है। अगर ये मिनट हैंड यहाँ पे आगे कितने मिनट हो गए 5, यहाँ पे आगे तो 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। मीन्स यहाँ से अगर ये क्लॉक जो है मिनट्स हैंड चलती है और यहाँ पर ही वापस आ जाती है तो कितने मिनट्स कवर किए इसने। आपने बोला सर इसने 60 मिनट्स कवर किए। कितने कवर किए, 60 मिनट कवर किए। तो 60 मिनट में क्या हुआ, 60 मिनट में इसने अपना वन रिवोल्यूशन, अपना वन रिवोल्यूशन का मतलब होता है चक्कर, इसने 60 मिनट में, मिनट हैंड्स ने 60 मिनट में एक चक्कर, एक रिवोल्यूशन क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। एंड यू नो वेरी वेल दैट व्हेनेवर वन रिवोल्यूशन इज कंप्लीटेड देन देयर विल बी एंगल 360 डिग्री, जिसे अपन कंप्लीट एंगल बोलते हैं। तो अगर ये मिनट हैंड यहां से चलती हुई वापस यहीं आ गई, इसका मतलब वन रिवोल्यूशन हो गया। और वन रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, 360 डिग्री एंगल। तो 60 मिनट में कितने डिग्री का एंगल कवर हुआ, 360 डिग्री का। सो कैन आई राइट लाइक दिस 60 इंटू 1 मिनट, है ना, और 360 डिग्री। कि देखो 60 बन जा 60 मिनट, तो 60 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 360 का। हियर 60 इज इन द मल्टीप्लाई, सो वी हैव टू डू द ट्रांसपोजिंग। तो देखो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 1 मिनट इक्वल्स टू 360 अपॉन 60। 6 से 0 से 0 कैंसिल, 6 बन जा 6 और 6 6 जा 36। सो 1 मिनट में जो एंगल बना, वो 1 मिनट में जो एंगल बना वो आ गया 6 डिग्री। कितने डिग्री का, 6 डिग्री का। इसका मतलब 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 6 मिनट का। तो 60 मिनट में, 60 मिनट में इधर भी 60 से मल्टीप्लाई करो, 60 बन जा 60, इधर भी 60 से मल्टीप्लाई करो 360। तो देखो वी आर गेटिंग द सेम कंसेप्ट। तो इसका मतलब अपने को पता लग गया कि 1 मिनट में मिनट हैंड जो है वो कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ करेगी, 6 डिग्री का। बट इस द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट द 5 मिनट्स। कितने मिनट्स के बारे में बात कर रहा है वो, 5 मिनट्स। सो वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल which is made in 5 minutes। मिनट हैंड जो है वो 5 मिनट्स में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। सो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 5। सो 5 बन जा 5 मिनट इक्वल्स टू 5 6 जा 30, 5 6 जा 30 डिग्री। सो आपको 5 मिनट में एंगल बताना था। सो यू हैव टू टेल अबाउट द 5 मिनट्स। सो 5 मिनट में जो मिनट हैंड है वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 30 डिग्री का। नाउ कम टू द एक्चुअल क्वेश्चन दैट वी हैव टू फाइंड आउट। सो देयर इज अ सर्कल दैट वी हैव, आप बोल सकते हो वॉच है, और ये वॉच का जो है वो डायल पेड है, 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मान लेते हैं ये मिनट हैंड जो है वो स्टार्टिंग में यहाँ थी, है ना, और यहाँ से यहाँ आ गई। तो कितने मिनट हो गए, 5 मिनट्स हो गए, और 5 मिनट्स हो चुके हैं। तो मीन्स एंगल विल बी 5 मिनट्स में कितने डिग्री का एंगल, अभी आपने बताया 5 मिनट्स में जो एंगल बनेगा विच इज 30 डिग्री। ये कितने डिग्री का एंगल होगा, 30 डिग्री। होगा कि नहीं होगा,
एंड द रेडियस मीन्स द लेंथ ऑफ द मिनट्स हैंड, जो घड़ी की मिनट वाली सुई है उसकी लेंथ कितनी है, विच इज 40 मीटर, 14 मीटर. सो ये भी 14 मीटर. आर यू नो? सॉरी, हैव यू गेट इट माई पॉइंट? ओके, सो नेक्स्ट, given that length of minutes hand, or we can say radius. So length of minute hand, length of minutes hand, the length of minutes hand, in bracket we have to write r, means radius, which is 14 centimeter. So आपने बोला 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनता है. सो एंगल सबटेंडेड बाई, सबटेंडेड का मतलब होता है बनाया गया, एंगल सबटेंडेड बाई, एंगल सबटेंडेड, सबटेंडेड का मीन्स क्या होता है, बनाया गया. एंगल सबटेंडेड बाई मिनट्स हैंड, एंगल सबटेंडेड बाई मिनट्स हैंड, एंगल सबटेंडेड बाई मिनट्स हैंड इन 1 मिनट, इन 5 मिनट लिख दो चाहे डायरेक्ट. 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 30 डिग्री का. तो ये आपको मैंने रफली करके बताया कि आप आया कैसे ये, ठीक है. और यू हैव टू राइट हियर योर आंसर. आंसर तो आपको यहां लिखना है और ये मैंने करके बताया. नेक्स्ट, बट व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट, मींस आपको ये वाला जो एरिया है वो फाइंड आउट करना है पूरा. सो मींस एंगल जो है वो 180 डिग्री से क्या है, छोटा, लेस देन, इट मींस वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर. बोला सर सेक्टर ही क्यों बोला आपने, बिकॉज देयर इज रीजन कि आपने बोला सर ये इसकी रेडियस, ये इसकी रेडियस, एंड दिस इज द लेंथ ऑफ आर्क. और जो सेक्टर है वो किससे मिलके बनता है, 2 रेडियस एंड लेंथ ऑफ आर्क से मिलके क्या बनता है, आपका सेक्टर बनता है. सो इट मींस वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर. सो फाइंड आउट, so you can write clearly that area of a minor sector, area of a minor sector, that we have to find out in this question. Now write your solution. So area of minor sector, area of minor sector equals to, area of minor sector equals to pi r square theta upon 360 degree. Is there any problem? No. What is the value of pi? The value of pi is 22 upon 7, because we have not said anything about the value of pi, so we have to take it 22 by 7. What is the value of radius? The value of the radius is 14 centimeter, है ना, अपने लिखा भी है. So how many powers on the radius? 2. So you have to write it 2 times, 14 into 14, and the angle is 30. So मैंने बोला कि एंगल के नीचे क्या मेंशन करूँ, एंगल, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो. So 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, और इसको करोगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14. सो 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12 है. कोई दिक्कत है नहीं. बोला सर एक बार और कैंसिल आउट हो रहा है, हाँ हो तो रहा है. तो 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14 आ गया. तो 22 7 जा 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज द यूनिट ऑफ दिस is centimeter, so we have to write the area of the unit. और यहाँ पर क्या आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर. This is the required answer that we have to find out in this question. So in the part 3 we have completed our question number 1, question number 2, question number 3 of exercise 11.1. So in the part 4 we will complete question number 4, question number 5, question number 6. There will be a series of all questions like this. So be ready for all our videos, upcoming videos, and show your love by subscribe this YouTube channel, share this YouTube channel with your friends and family members, and ask them to subscribe and press the bell icon. What's the need of the bell icon? Because whenever we upload the next video, then you will get the notification very first before anyone. So thank you for your love and thank you for watching us. Have a sweet day to all of you.